زرتاج بجھی بجھی بے دم سی ہو کر بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی۔ مسز اجاول کی یاد نے اسے ہلکان کر دیا تھا۔ مسز اجاول جاتے ہوئے فرمائش کر گیا تھا کہ واپسی پر وہی ساڑی پہن کر اس کا انتظار کرے جو اس نے کل ہی مال سے خریدی تھی۔ پھر وہ گھومنے جائیں گے اور پوری شام باہر گزاریں گے۔ مسز اجاول کی خواہش کے عین مطابق وہ سج سنور کر اس کا انتظار کر ہی رہی تھی، مگر یہ 2 گھنٹے بھی گزر گئے پر میر کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر روم سے باہر نکلی اور ونڈو کے پاس چلی آئی۔ خوبصورت نظارے، بلند و بانگ بلڈنگز، روشنیاں، چہل پہل، کچھ بھی تو اس کے بغیر آنکھوں کو بھلا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بغیر چند گھنٹوں میں پوری دنیا ویران لگنے لگی تھی۔ اس نے تھک کر دیوار سے ٹکا دیا، اس کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ مسز اجاول کی غیر موجودگی میں ویل ڈیکوریٹڈ ہنی مون کا سویٹ کاٹنے کو دوڑا تھا۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں بھر کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ تبھی مسز اجاول نے دروازے میں کی کارڈ سوئپ کیا اور روم ان لاک ہوتے ہی ذرا سا سر نکالا۔ دلبر صاحب، میر کی خوبصورت آواز نے اس کے بے جان جسم میں روح پھونک دی۔ زرتاج نے یکرت پلٹ کر دیکھا۔ مسز اجاول گرے پینٹ پر بلیک شرٹ جس کے اوپر 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کیا ہوا تھا جو گریبان سے ذرا نیچے جھول رہا تھا۔ اس نے گاڑی میں ہی سلیوز کونی تک فولڈ کر لی تھی۔ وہ لبوں پر شیریں مسکراہٹ سجائے پرنس چارمنگ لگ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ لوفر لگ رہا ہوں نا؟ دیکھو تمہارے دن بھر کی جدائی میں کیا حال ہو گیا۔ وہ معصوم سی شکل بنائے دروازے میں کھڑے کھڑے اپنا جادو چلانا شروع ہو گیا۔ زرتاج کی سسکیاں ہچکیوں میں بدلی اور مسز اجاول ساری چوکڑی بلائے پلک جھپکتے اس کے تک پہنچا۔ دلبر، سوری یار، لیٹ ہو گیا۔ میں نے جلدی نکلنے کی بہت کوشش کی مگر کام بہت تھا۔ اس نے زرتاج کا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے سینے سے لگایا۔ زری، اس میں اتنے رونے والی کیا بات ہے؟ پلیز ایسے مت رو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ زرتاج کا سر تھپکا۔ میسائی، میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی۔ آپ کے بغیر پورا دن میں نے بہت مشکل سے گزارا ہے۔ اب تو اس کمرے میں میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ وہ سو سو کرتی سر اونچا کر کے بولی۔ سائیں، اتنا ظلم نہ کرو، غریب بندہ ہو، یہ دل میں اترنے والی باتیں ایک دن مجھے مار ڈالیں گی، ڈائریکٹ دل پہ اٹیک کرتی ہیں۔ مسز اجاول فدا ہونے والے انداز میں دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ زرتاج کے گلابی رخسار دہک اٹھے۔ مائی گاڈ، تم نے ساڑی پہنی، تمہارے رونے دھونے میں نوٹ ہی نہیں کر سکا۔ ساڑی میں تو فلم ایکٹریس لگ رہی ہو۔ یہ میچنگ چوڑیاں کہاں سے آئیں؟ اس نے زرتاج کی چوڑیوں سے بھری کلائیاں پکڑ کے اسے خود سے دور کیا اور زرتاج کا مکمل جائزہ لے رہا تھا۔ یہ میں گھر سے لائی تھی، ساڑی سے میچ تھی تو پہن لی۔ زرتاج نے سادگی سے جواب دیا۔ اب ہم باہر نہیں جا رہے۔ وہ فاصلہ سمیٹتا نزدیک آیا۔ کیوں؟ کیونکہ دل ہی نہیں چاہ رہا تم چینج کرو۔ ساڑی میں باہر نہیں لے کر جا نہیں سکتا۔ اس کا اشارہ زرتاج کے ڈیپ گلے والے بلاؤز کی طرف تھا۔ اس نے زرتاج کا چہرہ قریب کیا اور ایک بھرپور بحث کی۔ زرتاج نے اس کی نظروں سے مجذوب ہو کر سر جھکا لیا۔ مسز اجاول نے بیگ سے ساڑی کا پلو اٹھا کر زرتاج کے سر پر رکھا۔ اب بالکل میری دلہن لگ رہی ہو۔ زرتاج کو سراہتا دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ساتھ لگائے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ، میں تو کل بھی شام تک بزی رہوں گا، تو کیا تم اسی طرح روتی رہو گی؟ اس نے زرتاج کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا۔ زرتاج کے چہرے پر خوف سا سایہ لہرایا۔ میس صاحب، میں اکیلی نہیں رہوں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ پریشانی سے بولی۔ اچھا پریشان مت ہو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میٹنگز کینسل کروا دیتا ہوں۔ اس نے زرتاج کے شانے پہ بکھرے بال سمیٹ کر ایک سائڈ پہ رکھے۔ اس طرح تو آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ زرتاج کو فکر ستائی۔ دلبر صاحب، آپ کے لیے میں بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر سکتا ہوں مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ میرے پیچھے میری دلہن ایسے روگی تو میں آج بھی نہیں جاتا۔ اس نے زرتاج کی چوڑیوں کو چھیڑ کر لبوں سے لگایا۔ یہ شخص نفرت کے قابل تو نہیں، یہ تو صرف چاہے جانے کے لیے بنا ہے۔ زرتاج نے دھڑکتے دل سے سوچا۔ یا پھر ایسا کرتے، کل میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ وہ سوچتے ہوئے بولا۔ میں کیا آپ کے ساتھ آفس جاتے ہوئے اچھی لگوں گی؟ زرتاج کھلکھلا کر ہنسی۔ ہاں کیوں نہیں، سب کو پتہ ہے کہ میں ہنی مون ٹرپ پر آیا ہوں۔ کل شام کو ہمارے لیے پارٹی بھی رکھی گئی ہے۔ اس نے واچ اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اس نے سر صوفے کی پشت سے لگا کر دکھتی ہوئی پیشانی کو مسلا۔ زرتاج فوراً اٹھ گئی۔ مسز اجاول کی فریضہ نگاہوں نے زرتاج کے نازک دلکش سراپے کا دور تک پیچھا کیا۔ مس سبدن، آخر ایسی کون سی بات ہوگی جو جہاں آرا صرف ہم کو ہی بتانا چاہتی ہے؟ مس جعفر، فائزہ وہاں موجود ہے، پھر اس نے ہم کو کیوں بلایا ہے؟ یہ بھی تاکید کی ہے کہ کسی کو خبر نہ ملے۔ میر غضب پیشانی مسلتے ہوئے بولے۔ اس بات نے مجھے بھی رات سے پریشان کیا ہوا۔ خیر، اب تو وہاں پہنچنے پر ہی پتہ چلے گا وہ کون سی اہم بات کرنا چاہتی ہیں۔ مس سبدن ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ رانیہ بیک سیٹ پر اونک رہی تھی۔ مس اجاول کل رات کی فلائٹ سے واپس پہنچا ہے مگر گھر نہیں آیا۔ گاؤں کیوں چلا گیا؟ کیا اس سے کوئی بات ہوئی تھی؟ میر غضب نے استفسار کیا۔ کل میری اس سے بات ہوئی تھی مگر اس نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں نے بھی نہیں پوچھا کیونکہ مجھے لگا وہ کراچی اسٹے کرے گا، لیکن آپ اسے جانتے ہی ہیں، اپنی مرضی کا مالک ہے، کب کیا کرے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو تم بالکل درست کہہ رہے ہو، میر غضب نے تائید کی۔
اب یہ بتاؤ کرنا کیا ہے، پہلے ہاسپٹل جانا ہے یا پھر رانیہ کو گھر ڈراپ کر دیں؟ میر غضنفر بولے ہاسپٹل چلتے ہیں، کیونکہ پہلے حویلی گئے تو پھر وہاں سے فوراً نکلنے کا کیا جواب دیں گے؟ جعفر چچا ضرور سوال کریں گے۔ ٹھیک ہے پھر تم پہلے ہاسپٹل لے چلو۔ میر غضنفر نے کہہ کر پیچھے سوئی ہوئی رانیہ پہ پیار بھری نظر ڈالی۔ میر اور زرتاج صبح 7 بجے حویلی پہنچے تھے۔ میر سجاول نے کراچی پہنچنے کے بعد وہاں اسٹے کرنے کے بجائے حویلی پہنچنے کو ترجیح دی۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد فوراً ہی زرتاج کو لے کر روم میں آ گیا۔ اس نے حکم سنایا کہ جب تک وہ خود نہ اٹھے تب تک اسے جگایا نہ جائے، اور زرتاج کو اس کے پاس سے ہلنے کی اجازت نہیں تھی۔ مگر دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ زرتاج چند گھنٹے کی نیند لینے کے بعد بیدار ہو چکی تھی۔ وہ لیٹے لیٹے بیدار ہونے لگی تو اٹھنے کا ارادہ کیا۔ اس نے میر سجاول کی گہری نیند میں ہونے کا اطمینان کیا، پھر آہستگی سے اس کے بازو سے سر اٹھا کر اس کا ہاتھ اٹھایا اور بیڈ سے اتر گئی۔ وہ فریش ہونے کے بعد بیگ میں سے فائزہ بیگم اور میر جعفر کے لائے ہوئے گفٹ نکال کر بیڈ روم سے نکل آئی۔ نگین بڑی بیوی کہاں ہے؟ اس نے نگین کو دیکھا تو اس نے فائزہ بیگم کی بات سوال کیا۔ وہ تو جی اپنے کمرے میں ہے، نگین مانا بولی۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، وہ نگین کو کہتی ہوئی فائزہ بیگم کے دروازے تک پہنچ گئی۔ کچھ سوچ کر دھیرے سے دستک دی۔ آ جاؤ، فائزہ بیگم کی خرخت آواز گونجی۔ زرتاج نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا، پھر دھیرے سے سلام کر کے آگے بڑھی۔ ایک ملازمہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی، جبکہ دوسری فائزہ بیگم کے سر کی مالش کر رہی تھی۔ کیسے آنا ہوا؟ زرتاج کو دیکھ کر ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ فائزہ بیگم نے لٹ مار انداز میں استفسار کیا۔ ہم آپ کے لیے گفٹ لائے تھے، وہی دینے آئی ہوں۔ اس بیگ میں آپ کا سامان اور یہ والے بیگ میں۔ ابھی زرتاج کی آدھی بات منہ میں ہی تھی کہ فائزہ بیگم نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ چھین کر زمین پہ دے مارے۔ میرے سامنے تیری 2 ٹکے کی اوقات نہیں، اور تیری یہ جرأت کہ تو میرے لیے تحفے خرید کر لائے گی۔ میں تجھ جیسی نیچ کمزاد کی لائی ہوئی چیزیں استعمال کروں گی؟ میر سجاول کی وجہ سے تو اس حویلی تک پہنچ گئی ہے، مگر میری برابری کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ واپس اسی کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دوں گی جہاں سے تو آئی ہے۔ وہ تو میرے بیٹے کا دل بہت بڑا ہے، تبھی تجھ جیسی بیکارن کو سڑک سے اٹھا کر گھر لے آیا، مگر زیادہ خوش رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس 2-4 دن کا شوق ہے میسائی کا، ابھی وہ تجھ سے اپنا دل بہلا رہے۔ جس دن ان کا دل تجھ سے بھر گیا، اسی دن تو حویلی کے باہر کھڑی نظر آئے گی۔ اس لیے اپنی اوقات میں رہنا سیکھ، اوقات بھول گئی تو بہت پچھتائے گی، فائزہ بیگم نے حقارت سے کہا۔ دونوں ملازمیں منہ پر ہاتھ رکھ کر زرتاج کی بے عزتی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ زرتاج کو دیکھ کر کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی مثال صادق آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آبشار رواں ہوئے۔ چل اب اٹھیے سب کچھ، اور اپنی منحوس شکل لے کر دفع ہو جا، آئندہ میرے کمرے میں قدم مت رکھنا۔ ہوں بڑی آئی تحفے لانے والی۔ زرتاج جھک کر سامان سمیٹنے لگی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے نکلی۔ سامنے نگین کھڑی تھی، جو فائزہ کی بلند آواز پر وہاں پہنچی تھی۔ اسے اندازہ تھا فائزہ بیگم زرتاج کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ زرتاج کی نظر اس سے ملی، مگر وہ رکی نہیں، تیز تیز قدم اٹھاتی کوریڈور پار کر گئی۔ نگین بھی اس کے پیچھے تقریباً بھاگ رہی تھی۔ تیری بیوی بڑی بیوی بہت بری ہیں، سب کو ایک لکڑی سے ہانکتی ہے، مگر آپ تو اس گھر کی بہو ہیں، انہیں اس بات کا خیال نہیں رہا۔ آپ چھوٹے میرزائی سے ان کی شکایت ضرور کرنا، بڑی بیوی بس ان کے سامنے کنٹرول میں رہتی ہے، ورنہ کسی کی دل آزاری کرنے سے نہیں چونکتی۔ آپ چھوٹے میرزائی کو بتائیں گے تو وہ ضرور آپ کی حمایت لیں گے، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کو بے عزت نہیں ہونے دیں گے۔ نگین کو زرتاج سے بے حد ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود گاہ بگائے فائزہ بیگم کے عتاب کا نشان بنتی رہتی تھی، مگر رانیہ کی مہربانی سے کچھ دن کے لیے ہی صحیح اسے سکون ملا تھا۔ لیکن دادی کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ ولیمے کے بعد کراچی نہیں گئی تھی، بلکہ گاؤں میں ہی رہ کر دادی کی خدمت کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ وہ جہاں آرا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی وجہ سے دوبارہ فائزہ بیگم کے شنکچے میں پھنس گئی تھی۔ وہی تو میں سارے فساد کی جڑ، ان کی وجہ سے میری زندگی قابل رحم ہو گئی ہے، مجھے ذلیل کروا کے رکھ دیا ہے۔ وہ کیا میری عزت کروائیں گی جنہوں نے سرعام میری عزت اتاری ہے؟ زرتاج غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ نگین نے ہاتھ چھڑا کر بھاگتی ہوئی کمرے میں پہنچی۔ اس نے روم میں پہنچ کر کتنی دیر دروازے سے ٹیک لگائے، گہرے گہرے سانس لیے، پھر ایک نفرت بھری نظر بے خبر میر سجاول پر ڈالی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کے دل کا بوجھ تو ترے سے آنسو بہانے کے بعد بھی کم نہیں ہوا۔ وہ تینوں ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں کھڑے تھے۔ جہاں آرا نے انہیں دیکھا تو ہاتھ جوڑ دیے۔ میر صبری فوراً آگے بڑھا، اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، آپ کو تکلیف دی ہے، مگر میں یہ راز اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، وہ نحیف آواز میں بولی۔ میر غضنفر بھی بیڈ کے نزدیک آ گئے۔ رانیہ بھی خاموشی سے میر غضنفر کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارے آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ اللہ پاک آپ کی عمر دراز کرے، میں نے ڈاکٹر سے بات کی، آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ میر صبری نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔
डॉक्टर्स कुछ भी कहें मगर मुझे पता है जाने का वक्त आ गया, इसलिए मैं ये राज आपको बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इस हकीकत को सुनने के बाद आप मुझसे नफ़रत करें, मगर मैं बहुत मजबूर थी। जहारा का जुल्फ़ों ज़्यादा चेहरा बिगड़ने लगा। इसने कमज़ोर टूटती आवाज़ में कहना शुरू किया, 20 बरस पहले मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था, मगर ये गुनाह मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मुझसे करवाया गया था। मैं अपनी गुर्बत की वजह से खामोशी और हुक्म की तामील करना मेरी मजबूरी थी। वो तीनों बखौर से सुन रहे थे। 20 साल पहले सुंदस बीबी की यहाँ जो औलाद पैदा हुई थी वो जुड़वा थी। उन्होंने एक नहीं 2 बच्चियों को जन्म दिया था, मगर फ़ायज़ा बीबी का हुक्म था कि सुंदस बीबी की औलाद को पैदा होते ही ख़त्म कर दिया जाए। मीरगन सफ़र के सर पे बम फटा था। एक बच्ची तो समीना बीबी के पास थी, मगर मैंने दूसरी को मौका मिलते ही चुपके से चुरा लिया। फ़ायज़ा बेगम बीबी का हुक्म था कि बच्ची को मार दिया जाए, मगर मेरा दिल इस ज़ुल्म के लिए नहीं माना और मैंने अपने औलाद बेटे को शहर से बुलाकर बच्ची इसके सुपुर्द कर दी। बहुत अरसे से मैं ये राज़ बताने की कोशिश कर रही थी, मगर अपने बेटे और बहू के आगे मजबूर हो गई थी। वो किसी सूरत भी बच्ची को खुद से जुदा करने पर राज़ी नहीं थे। इन दोनों ने बच्ची को अपनी सगी औलाद की तरह पाला है, फिर खुदा का करना ऐसा हो कि वो दोनों वक़्त से पहले ही दुनिया से चले गए। कौन है वो बच्ची? मीर गनसफ़र की आवाज़ गहरे कुएँ से निकली थी। नगीन। जहाँ आरा ने लड़खती आवाज़ में इंकशाफ़ किया। मीर गनसफ़र और मिस सब्ज़ी ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। रानिया की आँखें खुशी से भर आईं। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि महलों में पैदा होने वाली बच्ची मेरी बज़दिली और लालच की वजह से झोपड़ी में पली-बढ़कर जवान हुई, मगर मेरे बेटे ने अपनी औकात से बढ़कर इसके नाज़ उठाए और आज अल्लाह की मेहरबानी से सही सलामत अपनों के हाथ पहुँच गई है। जहारा, तुमने गुनाह तो किया, मगर मुझे एहसास है तुम किन हालात से गुज़री होगी। नगीन को ज़िंदा रखकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हारी ख़ता के सामने ये एहसान बहुत ऊँचा है कि तुम्हारे गुनाह को छुपाया गया है। मीर खान भारी आवाज़ में बोल रहे थे। मिस अदीन, तुम डॉक्टर से बात करो, वो जहारा का बेहतरीन ट्रीटमेंट करें। मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना है। इनकी आंखों में खून उतर रहा था। नगीन का ठहरा समा वजूद, इसके मामूली कपड़े, इसके साथ फ़ायज़ा का हद आमेज़ रवैया इनके खून खौलाए दे रहा था। सुंदस का मासूम चेहरा इनकी निगाहों में चक्कर आने लगा। वो आज हर कीमत पर फ़ायज़ा का मकरूह चेहरा भाई के सामने लाने का इरादा बांधकर हॉस्पिटल से निकले थे। मिसेस जावल नींद से बेदार हो गया था, मगर दिमाग नींद में डूबा हुआ था। इसने गुनूद की कैफियत में इधर-उधर हाथ मारकर सरताज को तलाशा, मगर इसकी गैर मौजूदगी पर पूरी आंखें खुल गईं। वो झटके से उठ बैठा। इसकी नज़र सोफे पर बेहिस व हरकत बैठी सरताज पे पड़ी तो होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। दिलबर साहिब, वहाँ इतनी दूर क्यों बैठी हो? यहाँ आओ, मेरे पास आओ। उसने बैकग्राउंड से टेक लगाकर सिर के सिगरेट सुलगाए। सरताज इसी पोजीशन में बैठी रहे, एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। जरी, मैंने कुछ कहा है, तुमने सुना नहीं? इधर आओ। इस बार मीर की आवाज़ कदरे बुलंद थी, मगर सरताज की तरफ से जवाब नादिर। इसे कुछ गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। वो कम्फर्ट हटाकर बेड से उतरा और सरताज के पास चला आया। मेरी जान, क्या बात है, इतनी खामोश क्यों हो? सरताज के बराबर बैठ गया। अरे यार, रो क्यों रहे? घर की याद आ रही है? इसने सरताज की मुतारिर आंखें देखी तो इसे पकड़कर जोर से भींच लिया। मुझे हाथ मत लगाया, मुझसे दूर रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। सरताज ने पूरी कुव्वत से इसका हिसार तोड़ा। मिसेस जवाल भौंचा कर रह गया। नफरत है मुझे आपके गलीज़ हाथों से। छूते हैं तो मुझे अपने वजूद से घिन आती है। सरताज ने इसके हाथ झटके। दिलबर साईं, तुम बहुत गुस्से में हो, पानी पियो, फिर तहम्मुल से मुझे बताओ क्या बात हुई है। मिसेस जावल ने जग से पानी का गिलास भरा और उसके लबों से लगाया। ये दिखावा जाकर किसी और के सामने करें जो आपकी असलियत ना जानती हो। मैं आपका असल चेहरा देख चुकी हूँ। जिसने अपनी मोहब्बत को दागदार कर दिया, वो किस मुँह से मोहब्बत जता रहा है। सरताज ने गिलास को हाथ मारा तो गिलास मिसेस जावल के हाथ से गिरकर चकनाचूर हो गया। सुबह तक तुम बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं नहीं जानता मेरी कौन सी बातें तुम्हें हर्ट कर दिया, फिर भी मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मिसेस जवल का मूड बिगड़ चुका था, मगर वो बामुश्किल ज़ब्त करते हुए हाथ जोड़कर बोला, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, फिर बात करेंगे। मुझे तो 2-4 ज़रूरी काम निपटाने के लिए बाहर जाना है। रात को मुलाकात होगी। वो धीरे से सरताज का गाल थपथपाकर उठ गया। सरताज का रवैया इंतहाई हद आमेज़ था, मगर मिसेस जावल ऐसी नाजुक सूरत-ए-हाल में अपने गुस्से के इज़हार से इसे मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। इसने मुलाज़िमा को अपने कपड़े निकालने के लिए साइड टेबल पर पड़ी बैल को पुश किया। सरताज सर झुकाए बैठी थी। इसकी सिसकियाँ दबरेज़ खामोशी में गूंजने लगी। तेरे खुदा का वास्ता, मुझ पे यूँ ज़ुल्म मत करो। कम से कम खुलकर बताओ तो सही क्या बात है। मगर इससे पहले प्लीज़ रोना बंद करो। तुम्हारे आंसू मेरा दिल चीर रहे हैं। मीर से जावल लंबे-लंबे ढंग बढ़ता उसके पास पहुँचा और उसका चेहरा हाथों में थाम कर बेबसी से बोला। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। यस, मिस जावेद सरताज के रुखसारों पे फिसलते आंसू अपने होठों की मदद से साफ कर रहा था। मुलाजमा हवास बाख्ता अंदर दाखिल हुई। मिस आई, जल्दी चले, नीचे बहुत हंगामा हो रहा है। मिस जावेद ने अपनी बेतहाशा सुर्ख होती आंखें उठाकर इसे देखा।
जानम तुम मुंह धो लो, मैं अभी आता हूँ। जताश की पेचानी चूमकर तेजी से रूम से निकला। शोर की आवाज़ें ऊपर तक आने लगी थी। चटाक चटाक चटाक। जलील औरत, तुम तो औरत कहलाने के काबिल भी नहीं हो। मीर जाफर ने बेदरबे कई थप्पड़ फ़ायज़ा बेगम को जड़ डाले। फ़ायज़ा बेगम फटी आंखों से काल पर हाथ रखे मीर जाफर का पुरजलाल रूप देख रही थी। इन्हें ज़बरदस्त झटका लगा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी साजिशी दिमाग रखती हो। तुमने मेरी बहन के खिलाफ इतनी घटिया साजिश रची। इसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुम्हें इस हद तक गिरना पड़ा। वो मासूम तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, फिर भी तुम्हें इस पे तरस नहीं आया। अच्छा हुआ कि वो मर गई, वरना तुमने तो इसके पल पल मरने का बंदोबस्त कर दिया था। इसका शौहर तो कुदरत ने इससे छीना, तुम तो ज़मीनी खुदा बनकर इसकी औलाद को इससे छीन कर इसकी ज़िंदगी को मौत से पहले मौत की अज़ियत से दो चार करने वाली थी। मीसा, ये आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। आखिर मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? फ़ायज़ा बेगम खुद को संभाल कर ठिठाई से बोली। पूरा घर खामोश तमाशाई बना खड़ा था। किसी ने भी आगे बढ़कर मीर जाफ़र को रोकने की कोशिश नहीं की थी। मुलाजिम अलग हैरान व परेशान खड़े फ़ायज़ा बेगम की इज़्ज़त अफ़ज़ाई का नाक़ाबिल यकीन मंज़र मुलाहिज़ा कर रहे थे। अलबत्ता रानिया नगीन को अलहदा कोने में ले जाकर धीरे धीरे तमाम तर हकीकत से आगाह कर रही थी, जबकि नगीन की कुआई स्लिप हो चुकी थी। मिस्टर जाबल भी वहाँ पहुँच चुका था, मगर किसी समझ में कुछ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। इसने मामले की नोयत जानने के लिए मिस्टर दिन के पास जाकर धीमी आवाज़ में इस्तफ़ा किया। घटिया कमीनी औरत, बंद कर अपनी ड्रामेबाजी। तू अच्छी तरह से समझ रही है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इस हवेली में किस चीज़ की कमी थी जो तूने ये सब कुछ किया। मेरा एक भाई मर चुका था, एक खुद ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया। फिर कैसी हविस थी जो इतनी दौलत मिलने पर भी इसे किनारा नहीं मिल रहा था, या फिर औकात से ज़्यादा मिलने पर मजीद आँख भड़क उठी। मीर जाफ़र की आंखों से शरारे निकल रहे थे। मीसा, कसम ले जो मैंने ऐसा कुछ किया हो, आपको मेरे खिलाफ किसी ने भड़काया है। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी। सुंदस तो मेरी छोटी बहनों की तरह थी। फ़ायज़ा बेगम आँखों में आंसू भरकर मिनमिनाई। खबरदार, जो तुमने एक लफ्ज़ भी अपनी झूठी ज़बान से निकाला, वो तुम्हें कितनी अजीज़ थी, इस बात का अंदाज़ा मुझे तुम्हारे इस घर में ब्याह कर आने के फ़ौरन बाद ही हो गया था। मीर जाफ़र ने भड़क कर उनकी तरफ कदम बढ़ाए। निकलो मेरे घर से, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। मैं तुम्हें अभी के अभी फ़ारिग कर रहा हूँ। अपनी शक्ल गुम कर दो, दोबारा कभी इस हवेली की तरफ रुख मत करना, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। मीर जाफ़र ने मजबूती से इनका बाजू दबोचा और खींचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। नहीं, नहीं सर, आप इस उम्र में मेरे सर में खाक नहीं डाल सकते। मैंने कुछ नहीं किया, फिर मुझे किस बात की सज़ा दे रहे? मुझ पर रहम करें। फ़ायज़ा बेगम के छक्के छूट गए। वो मीर जाफ़र से हाथ छुड़ाकर उनकी टाँगों से लिपट गई। मक्कार, और अब भी तू बेहयाई से अपनी बात पर डटी हुई है क्या? वो मरती हुई औरत अपने आखिरी वक़्त में झूठ बोलेगी? तूने सबको अपनी तरह बेज़मीन समझा हुआ है, मगर अब तेरे ऐब मुझ पर खुल गए हैं। अब तेरे लिए मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। उन्होंने फ़ायज़ा के बाल पकड़ के झंझोड़े और दोबारा उनको बाजू से पकड़ कर उठाने की कोशिश की। वापस आएँ, रुक जाएँ प्लीज़, अपने गुस्से पे काबू रखें। ये सच है कि उन्होंने बहुत बुरा किया, मगर अब ये कहाँ जाएँगी? मिसेस जावल ने बाप को इंतहाई कदम उठाने से रोका। वो बुलंद आवाज़ में बोला, साईं मुझे माफ़ कर दें, मुझे अपना गुनाह कबूल है। मिसेस जावल की मोहब्बत ने मुझे खुद गर्ज़ बना दिया। मैं चाहती थी वो ख़ानदानी जागीर का तन्हा वारिस बने, कोई और शराकतदार ना रहे। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, मगर अल्लाह जानता है ये सब मैंने सिर्फ़ मिसेस जावल के मुस्तक़बिल के लिए किया। अब अल्लाह पर छोड़ दें। मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे ज़रूर देगा, मगर मुझे दुनिया की नज़रों में रुसवा मत करें। फ़ायज़ा बेगम सर झुकाकर हाथ जोड़ते सिसकते हुए बोली, मीर जाफ़र इसे माफ़ कर दो, इसकी यही सज़ा काफ़ी है कि ये हम सब की नज़र से गिर गई है। मीर गनसफ़र भी इस मामले को तूल देना नहीं चाहते थे, इसलिए बिलाखिर बोल पड़े। इनके लिए यही बहुत था कि फ़ायज़ा की हकीकत खुल गई थी और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। मिर्ज़ा जावल, इस बज़ात से कह दो कि ये मेरे सामने ना आए, ना मेरे कमरे में कदम रखे, और ना ही अब मेरा इससे कोई ताल्लुक़ होगा, ना मैं इससे कलाम करूँगा। अगर इसको ये सब शराइत मंज़ूर है तो हवेली में रह सकती है, वरना हवेली के दरवाज़े खुले हैं। मीर जाफ़र शोलाबार निगाहों से घूरा, फिर नगीन के पास आए। नगीन बेटी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारी लापरवाही की वजह से तुम ज़िंदगी भर सगे रिश्तों से दूर रही, मगर मेरा वादा, अब तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उन्होंने नगीन को सीने से लगाया। तुम्हारे माँ बाप का ख़ला तो पूरा नहीं किया जा सकता, मगर तुम्हारी माँ जाई मौजूद है, तुम्हारी ताई है, जिन्होंने सगी माँ से बढ़कर तुम्हारी बहन को पाला है। किस्मत की मेहरबानी है कि अब वो लोग भी हमसे दूर नहीं हैं। तुम जब चाहो उनसे मिल सकती हो। उन्होंने नगीन का सर थपका। तुम सब क्या लाइन लगा कर खड़े हो? घर की कोई भी बात हो, तुम लोग पहले झुरमट लगा कर खड़े हो जाते हो। बैक टू वर्क। बेई सजावट ने मुलाजमा को ज़बरदस्त झाड़ पिलाई। इस हवेली में अब तुम्हारी हैसियत मुलाजमा की नहीं बल्कि मालकन की है, इसलिए तुम्हारे रवैये से हल्की सी भी अजनबियत या झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी भी इतनी अहमियत है जितनी कि रानिया की है। खुद को किसी तौर भी इससे कम नहीं समझना। मिस सजावट ने इसके सर पर हाथ रखा।
पागल लड़की, रो क्यों रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह साईं ने तुम्हें हकीकी रिश्तों से ना मिला दिया है। इसमें रोने वाली क्या बात है? नगीन की आंखों से आंसू टपकने लगे तो मीर सजावल ने इसे गले से लगा लिया। सजावल भाई, ये खुशी के आंसू हैं। मैं बहुत रोती थी कि अल्लाह साईं ने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, भरी दुनिया में मुझे तनहा कर दिया। मैं समझती थी कि इस दुनिया में मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं, मगर अल्लाह की शान निराली है। वो कुछ लेता है तो इससे बढ़कर देता है। मेरी एक सगी बहन भी है। इस खबर ने मेरे तमाम दुखों का मदावा कर दिया है। नगीन की आवाज़ कँप-कँपा गई थी। गुड गर्ल, खुश रहो। मीर ने इसकी पेशानी चूमकर दुआ दी। आपा किस सोच में गुम बैठी हैं? सब खैरियत है ना? शाह का ऑपरेशन था, अब वो कैसा है? समीना लिविंग रूम में आई तो रुखसाना बेगम को सोचों में गुम पाया। समीना, अच्छा हुआ तुम खुद आ गए, मैं बस तुम्हारे ही पास आने वाली थी। रुखसाना बेगम ने समीना का हाथ दबाया। क्यों आपा, आपको कोई ख़ास बात करनी थी? समीना मामूल के लहजे में बोली। पहले ये बताओ उरूश कहाँ है? रुखसाना बेगम का अंदाज़ राज़ाना था। वो कमरे में, मैं इसी के पास से आ रही हूँ, सोचती हूँ इसको अपने रूम में शिफ्ट कर लूँ। अब इसकी डिलीवरी में ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, आप मेरी बात सुने। मखदूम शाह का फ़ोन आया था, शाह का ऑपरेशन कामयाब हो गया है, वो होश में भी आ गया है। मखदूम ने इससे से बात करवाई थी, मगर इसने एक और ख़बर सुनाई है। तुम्हें तो सुनकर बहुत खुशी होगी, मगर मैं तो सुनकर हैरान रह गई हूँ। रुखसाना बेगम का अंदाज़ सरगोशी लिए हुआ था। अच्छा, ऐसी क्या खबर आई है? मुझे भी बताइए। समीना बेगम को तजस्सुस हुआ। रुखसाना बेगम ने इनके करीब होते हुए धीरे-धीरे पूरी कहानी इनके गोश गुज़ार दी। अपा, ये तो वाक़ई खुशी की खबर है। मेरे तैमूर की एक और निशानी इस दुनिया में ज़िंदा सलामत मौजूद थी, लेकिन दुःख इस बात का है कि फ़ाइज़ा इतनी ज़लील निकली। आखिर इसे ये सब करके क्या हासिल हुआ? हमारी बच्ची सिर्फ़ इसकी वजह से गैरों में पली। समीना बेगम की आँखें भीग गईं। लालच इंसान से सब कुछ करवा देता है, और ये तो दुनिया जानती है कि फ़ाइज़ा मीर सजावल के लिए कितनी पागल हो जाती है। खैर, इस बात को छोड़ो, अब ये बताओ कि नगीन उरूस से मिलना चाहती है। उरूस को क्या बताओगी? वो तो कुछ भी नहीं जानती। रुखसाना बेगम परेशान होकर बोली। अब तो सब सब कुछ बताना पड़ेगा। वैसे भी एक ना एक दिन तो ये राज़ खोलना ही था, मगर मैं जब भी इसको बताने का सोचती थी तो परेशान हो जाती थी कि इसका रद्द-ए-अमल बहुत शदीद होगा, वो टूट जाएगी। मगर अब शायद इसका रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ हो, क्योंकि इसको हकीकत जानने के साथ बहन का अनमोल रिश्ता भी मिलेगा। समीना बेगम कदरे पुरसुकून थी। उरुज, बेटा जाग रही हो? समीना ने इसके चेहरे को झुककर इसकी पेशानी से बाल समेटे। नहीं अम्मा, जाग रही हूँ। आप तो खालाजान के पास गई थी, वापस आ गई? उरुज उठकर बैठ गई। हाँ गई तो थी, मगर उन्होंने बात ही कुछ ऐसी की, वापस आना पड़ा। समीना बेगम मैंने ख्याजी से बोली। मेरे पास तुम्हारे लिए दो खबरें, एक अच्छी और एक शायद कुछ बुरी है, मगर बुरी इतनी बुरी नहीं जितनी अच्छी खबर तुम्हारे लिए बायस मुसरत होगी। समीना बेगम तहमीद बांधी। अम्मा, शाह तो ठीक है ना? अरूज ने सीने पे हाथ रख कर कहा। अरे वो बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें मेरी बात सब्र हौसले से सुनना होगी, लेकिन पहले मुझसे वादा करो तुम सुनकर भौंकलाओगी नहीं, बल्कि मेरी मजबूरियों को समझोगी। अम्मा बता भी दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरूज की पेशानी अर के आलूद होने लगी। समीना बेगम ने इसका हाथ अपने हाथों में लिया और शुरू से आखिर तक की कहानी सुनाना शुरू की। अरूज की ज़बान गंग हो गई थी। इसने समीना को कहीं भी टोकने की कोशिश नहीं की, मगर आखिर में इसका जवाब दे गया और समीना के शाने से सर टिकाकर फूट-फूट कर रो दी। अम्मा, हम बहनें कितनी बदनसीब है, पैदा होने से पहले बाप चला गया और पैदा होते ही माँ को खो दिया। मैं तो फिर भी आपकी और बाबा की शफ़क़त में पली, मगर नगीन तो हवेली वालों की ठोकरों में रही। उरुज दुख से कह रही थी। तुम दोनों बहनें बहुत खुशनसीब हो कि इतनी कड़ी आज़माइश के बावजूद भी अपनों के साए में रहीं। नगीन को भी जिन्होंने गोद लिया वो बे-औलाद थे। उन्होंने नगीन को अपनी सगी औलाद से बढ़कर चाहा। कुछ अरसा हुआ इन दोनों की मौत हो गई, और अब नगीन की हकीकत सबको पता चल गई है, तो वो हवेली में पूरे हक़ से रहेगी। समीना बेगम ने मोहब्बत से इसकी पूँछ सहलाई। अम्मा, मैं नगीन से फ़ौरन मिलना चाहती हूँ। रुश ने बेताबी से कहा। बेटा अभी नहीं, बहुत रात हो चुकी है, कल हम सब वहाँ चलेंगे। मुझे इससे अभी मिलना है, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें। अभी जाना सही नहीं है, इनके घर का मौला ख़ासा गर्म है। फ़ायज़ा के करतूत खुलने पर जाफ़र भाई ने बहुत हंगामा किया है, हमारा जाना बेवक़्त होगा। रात की तो बात है, कल मिल लेना, बल्कि हम कुछ दिनों के लिए इसे यहाँ ले आएँगे। समीना बेगम इसे समझा रही थीं। डैडी, आपने मुझे बुलवाया? मिस सबीन दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। हाँ, इधर आओ, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। मिर्ज़ा जाफ़र ने ग्लासेस उतार कर अपने बराबर में बैठने का इशारा किया। मिस सबीन उनके बराबर में आकर बैठ गया। आज मैं कोई तहमीद बाँधने वाला नहीं हूँ, सीधी बात कर रहा हूँ, मुझे सीधा और फ़ौरन जवाब चाहिए। अब तक तुमने अपने लिए कोई लड़की पसंद नहीं की, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि तुम किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हो। मैं फिर भी तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर कोई तुम्हारी नज़र में है तो बता दो, वरना मैं फ़ैसला करने लगा हूँ। मिर्ज़ा सफ़र ने दो टोक बात की। मिस दिन की यादों में अरूज का चेहरा लहराया। इसके लबों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट मचल कर दम तोड़ गई। मिस दिन ने सर झटका। आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, और आप जो भी फ़ैसला करेंगे मुझे मंज़ूर होगा, वो संजीदगी से बोला।
दैट्स गुड, इसका मतलब तुम शादी के लिए राज़ी हो। जी, मिसअदीन मुख्तसर बोला। मैंने सोचा, बल्कि यूँ कह लो, मैं नगीन से तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश भी है और वक़्त का तकाज़ा भी यही है। वो बच्ची हमारी पूरी ज़िंदगी अपनी असल से जुदा रही। अब इसका हक़ बनता है कि इसे इसके हिस्से की खुशियाँ मिलें। अगर इसकी शादी कहीं और की गई तो मुझे बेसुकूनी रहेगी। मेरे इस फ़ैसले से शायद मेरी बहन की रूह को सुकून मिले। मेरे हमसफ़र की आँखों के किनारे भीगने लगे। मगर वो तो बच्ची है, इसका और मेरा कोई मैच नहीं है। इसमें सद्दी ने नफ़ी में सर हिलाया। अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें मेरा हर फ़ैसला मंज़ूर होगा और अब तुम खुद ही अपनी बात से मुकर रहे हो। मीर गनसफ़र ने इसे बुरी तरह घूरा। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मीर सद्दीन गड़बड़ा गया। तो बस फिर मैं बहुत जल्द शादी की डेट फ़ाइनल करने वाला हूँ। तुम भी अपनी तैयारी रखो। रह गई बात उम्र की, तो वो कोई मायने ही नहीं रखती। वो रानिया से 2-3 साल तो छोटी होगी, ज़रताश की भी इतनी ही उम्र है। मगर खुश है ना वो मीर सदावल के साथ? तुम्हें भी उम्र के इस फ़र्क के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम भी नगीन के साथ खुश रहोगे। मीर गनसफर ने इसकी कमर पर थप लगाई। जी बेहतर और कोई हुक्म? मीर सद्दीन उठते हुए बोला। नहीं, जाओ अब आराम करो। मीर गनसफर दोबारा अखबार की तरफ मुतवज्जा हो गए। मीर सद्दीन सर हिलाकर बाहर निकल आया। वो सोचों में गुम सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। सब्ज़ीन भाई, आप चाय पियेंगे? मैं अपने और रानिया के लिए बनाने लगी हूँ। नगीन जो सीढ़ियाँ उतर रही थी, मीर सद्दीन के सामने रुककर पूछने लगी, मगर मुँह से सब्ज़ीन भाई निकल जाने पर दिल ही दिल में जिप्स हो गई, क्योंकि मीर सब्ज़ीन को फ़ैसला सुनाने से पहले मीर गनज़फ़र ने नगीन से रज़ामंदी लेना ज़रूरी समझा था। हाँ, अगर बना रही हो तो मेरे लिए भी बना लेना। चाय की काफ़ी तलब हो रही थी और तुम दोनों अब तक सोई क्यों नहीं? टाइम देखा है? मीर सब्ज़ीन ने वक़्त का अंदाज़ा करते हुए साँस दिलाना ज़रूरी समझा। हम दोनों मूवी देख रहे थे, टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चला। वो मीर सब्ज़ीन के गुस्से से ख़ाइफ़ हो गई थी। चाय पीकर फ़ौरन सो जाना, देर रात तक जागना ठीक नहीं होता। मीर सब्ज़ी ने तंबिया की। जी अच्छा। नगीन मुख्तसर कहकर धीरे से मुस्कुराए, सर झुकाकर सीढ़ियाँ उतर गई। पहली बार मीर सब्ज़ी ने इसे किसी और निगाह से देखा था। इसे गाल में पड़ने वाले डिंपल पर मीर सब्ज़ी ने बीट मिस की। नगीन एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर हो सकती थी। वो खूबसूरत होने के साथ खूबसूरत और बेहतरीन किरदार की मालिक थी। इसे मीर गनसफ़र का फ़ैसला बहुत खूब लगा। मीर सब्ज़ी ने मुतमईन सा होकर मुस्कुरा दिया। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आधी रात को यूनुस की तबीयत बिगड़ गई। समीना और रुखसाना बेगम इसे लेकर हॉस्पिटल आ गई थीं। वो दोनों बेंच पे बैठी मुसलसल उरूज के लिए दुआ कर रही थी। सुबह के 7 बज चुके थे। तभी नर्स नन्हे-मुन्ने से वजीद को लेकर बाहर आई। मिसेस शाह, आप दादी बन गई, आपको पोता बहुत मुबारक हो। नर्स ने एहतियात से बेबी को रुखसाना की गोद में मुंतकिल किया। खैर मुबारक, माशाअल्लाह बहुत प्यारा। देखो समीना बिल्कुल मखदूम जैसा है ना? रुखसाना बेगम का चेहरा खुशी से दमदमा रहा था। माशाअल्लाह, अल्लाह नज़रें बद से बचाए। नर्स, उरूज कैसी है? समीना बच्चे को चूमकर नर्स की तरफ मुड़ी। वो बिल्कुल ठीक है, कुछ देर बाद हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप इनसे मिल सकती हैं। नर्स ने बच्चे को वापस लेते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया। समीना, तुम यहाँ बैठी रहो, मैं ड्राइवर को कहकर मिठाई मंगवाती हूँ। रुखसाना चादर संभालती हुई चली गई। इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उरुश बच्चे को गोद में लिए प्यार भरी नज़रों से टकी बांध कर देख रही थी। माँ बनने की खुशी से इसका चेहरा भी दमक रहा था। इसने ज़ोर से बच्चे को सीने से लगाया तो कसमसा कर चीखा। उरुश खिलखिलाकर हंस दी। अम्मा, ये कितना क्यूट है ना? मेरा दिल चाह रहा है बस इसे देखती रहूं, पलके भी ना झपकूं। इसकी आवाज़ शिद्दत जज्बात से चूर थी। समीना और रुखसाना के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अस्सलाम वालेकुम। रानिया, नगीन और मीर गनसफर एक साथ रूम में दाखिल हुए। वालेकुम सलाम साहब। वो दोनों अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उरुश और नगीन बगैर पलके छिपाए एक दूसरे को देख रही थी। नगीन का सकता टूटा तो वो दौड़कर उरुश से लपट गई। वो दोनों कितनी देर तक एक दूसरे से लगी रोती रहीं। किसी ने भी इन्हें अलग करने या चुप करवाने की कोशिश नहीं की। फिर मीर गनसफर ने आकर इन दोनों के सर पर हाथ रखा। हमारी कोताही और लापरवाही का ख़मीज़ा तुम दोनों को भुगतना पड़ा। बेशक तुम तो अपनों की आगोश में रही, मगर फ़ायदा की वजह से जो बदगुमानियाँ पैदा हुईं, नगीन की गुमशुदगी का कसूरवार सफदर शाह को समझा गया। इसी वजह से मसरूर और समीना तुम्हें लेकर रुपोश हो गए। इस सब में हम उरुश, तुम्हें बेटा बहुत मुबारक हो। नगीन ने अपनी आंखें साफ करते हुए भांजे को झुक कर चूमा। हाँ, ये वाकई बहुत प्यारा, आज ही ये मिला है और आज ही तुम मिली हो। उरुश ने प्यार से नगीन के गाल को छुआ। फिर तो इसका नाम मुबारक होना चाहिए। रानी ने लुकमा दिया और सब बेख्तियार हंस पड़े। इसका नाम तो इसके बाप ने रख भी दिया, इससे पहले ही सोचा हुआ था। जब मैंने इसके आने की खबर इसे दी तो इसे नाम भी बता दिया। अच्छा, मुअज्जम भाई ने इसका क्या नाम रखा है? नगीन ने खुशगवार हैरत से पूछा। ज़ईम शाह शहराजी। उरूज ने बहुत प्यार से इसका नाम लिया। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है, सबने तारीफ की। सफदर शाह नज़र नहीं आ रहे, कहीं गए हुए हैं क्या? वो सुबह शहर से सीधा यहीं आ गए थे रेस्ट करने के लिए, अभी कुछ देर पहले ही घर गए हैं, रुखसाना बोली।
भाई फिर आप मीर सब्ज़ी की शादी कब कर रहे हैं? मीर गनसफर और मीर जाफ़र फुर्सत से लिविंग रूम में बैठे हुए थे। मीर सजावल भी वहीं मौजूद था। वो सोफे पे बैठा रिमोट हाथ में पकड़े चैनल पे चैनल चेंज कर रहा था। बच्चे तैयारियों में लगे हुए हैं, इनके काम मुकम्मल हो जाए 6 महीने के अंदर ही कोई डेट फाइनल कर दूंगा। मगर रानिया के लिए बहुत परेशान हूँ। इसका भी रिश्ता तय हो जाता तो मैं बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाता। मुझे रानिया की बहुत फ़िक्र सता रही है। मीर सब्ज़ी और ज़कीन के साथ ही इसकी भी शादी हो जानी चाहिए ताकि रानिया भी अपने घर की हो जाए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपनी ज़िंदगी में इसे हँसता-बसता देख लूँ तो फिर मुझे ज़िंदगी को कोई परवाह नहीं होगी। वो बहुत फ़िक्रमंद हो रहे थे। दिल छोटा मत करें, अल्लाह इसके लिए भी कोई न कोई असबाब बना देगा। मीर जाफ़र ने तसल्ली दी। सफदर शाह का फ़ोन आया था, वो जवाब माँग रहे थे और बस ये था कि जवाब हाँ में ही हो। मखदूम शाह की खुशी भी इस रिश्ते में शामिल है। मीर गंज आस्तीगी से बोले। मीर सजावत ने चौंक कर इन्हें देखा। आप लोग इन्हें साफ क्यों जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तमाशा ख़त्म क्यों नहीं कर देते? रानिया में कोई कमी नहीं है, लंगड़ी लूड़ी या बदसूरत नहीं है, ना ही इसकी उम्र निकली जा रही है जो आप इतने फ़िक्रमंद हो रहे हैं। बेहतरीन रिश्ता मिल जाएगा इसके लिए। मगर आप इस खुशफ़हमी में मत रहना कि मैं राज़ी हो जाऊँगा। वो भड़क कर बोला, कहीं ऐसा ना हो मुझे इस मखदूम शाह का कोई बंदोबस्त करना पड़ जाए, तभी इस मुसीबत से जान छुटेगी। आप सब लोग अच्छी तरह समझ लें, मैं हरगिज़ भी ये शादी नहीं होने दूँगा, भला इसके लिए मुझे मखदूम शाह का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। वो गज़ब-नावी से बोला, मिस्टर जावल तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मुझे मखदूम शाह से कोई गर्ज़ नहीं है, मगर मैं फिर भी तुम्हें किसी मुश्किल में पड़ने नहीं देना चाहता। समझे तो? मीर जाफ़र तड़प कर बोले, बेशक रानिया में कोई कमी नहीं, मगर इसका बेहतरीन रिश्ता आ चुका है। अच्छे रिश्ते को भला जवाज़ ठुकराना कुफ़रान नेमत होता है। जब हमारी दुश्मनी ख़त्म हो चुकी है, सारे मामला दुरुस्त हो गए हैं। सबसे ज़्यादा गुस्सा इन पर यही था ना कि उन्होंने सुंदस की बच्ची को अगवा किया, तो अब वो राज भी खुल चुका है, फिर इतना जज्बाती होने की क्या ज़रूरत है। मीर गनसफर ने इसे कायल करने की कोशिश की। इट्स मीन्स आपने फ़ैसला कर लिया कि आप अपनी मर्ज़ी करके रहेंगे, क्योंकि शहराजियों से दोबारा रिश्ता जोड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, तो फिर खुलकर बोल देना कि मैं घर छोड़कर चला जाऊँ। वो रिमोट ज़मीन पर मार कर खड़ा हो गया। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैंने ऐसी कोई बात की है? मैं इनका प्रपोज़ल कबूल करने वाला हूँ या अभी वहाँ जा रहा हूँ, फिर इतनी जल्दी क्यों हाइपर हो जाते हो? अपने दिमाग को ठंडा रखा करो, हर वक़्त गर्मी अच्छी बात नहीं है। मीर गंजफ़र रसान से बोले, आप चाहे कुछ भी कहें, मैं मरते दम तक भी इस रिश्ते के लिए राज़ी होने वाला नहीं हूँ, ना मैं आपको ये रिश्ता जोड़ने दूँगा। बेहतर होगा आप इन्हें क्लियर इनकार कर दें ताकि ये बात कहीं ख़त्म हो जाए, वरना अंजाम आपकी सोच से भी ज़्यादा बुरा होगा। वो सख्त लहजे में धमकी देता हुआ लिविंग रूम से बाहर निकल गया। कॉरिडोर के आखिरी सिरे पे रानिया खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। मीर सजावत की बातें इसे नेज़े की तरह महसूस हुईं। इसकी आँखें झुरझुर भर बह रही थीं। मीर सजावल की नज़र इस पे पड़ी तो ठठक कर रुक गया। रानिया से इसे शिकवा करना नज़रों से देखा। मीर सजावल को उसका देखना हिला कर रख दिया। वो कितनी देर तहरीर से इसे देखता रहा, फिर सुस्त कदमों से चलकर रानिया के पास आया। रानिया में इसे नज़र मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। वो दीवार को तकने लगी, मगर इसकी मुतारिम आँखें चीख-चीख कर सारा फसाना सुना रही थी। मीर सजावल जैसे ज़ैरिक और ज़हीन इंसान को इसके दिल की आवाज़ सुनने में एक लम्हा भी नहीं लगा। इसकी दिली कैफ़ियत समझना मीर सजावल जैसे आशिक के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मीर के तने हुए साँप ढीले पड़ गए। इसके चेहरे पे फैली खतरनाक हद तक संजीदगी एकदम ही नरम मुस्कुराहट में बदल कर इसके दिलकश चेहरे को मज़ीद रौनक बख्श गई। इसने रानिया के सर पे हाथ रखा, फिर इसका सर हिलाकर उँगली के पोर से इसके आँसू समेट लिए। अब रोना मत, तुम जो चाहती हो वही होगा, भले तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे अपना सर क्यों ना झुकाना पड़े। मीर ने भरी गंभीर आवाज़ में कहा। पहले तो रानिया की आँखें हैरत से फैल गईं, फिर इसने दोनों हाथ मीर के गिर्द थमाए की और उसके सीने से लगकर सिसक पड़ी। मीर ने धीरे से इसका सर थपका। मीर सजावल की नज़र ऊपर उठी तो रैंकिंग पे ज़रतार झुकी हुई थी। इसे देखकर फ़ौरन मुस्कुराई। इसे जैसे ही पता चला मीर सजावल घर आया तो वो तब से जले पैर बिल्ली की तरह चक्कर काट रही थी, मगर मीर की बुलंद खसीली आवाज़ पे नीचे आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मीर ने एक चुभती हुई सख्त आर-पार न हो जाने वाली नज़र इस पर डाली, फिर वहीं से पलट गया। इसकी बेरुखी पर ज़रताश को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। वो इस शराबी कैफियत में अपनी उँगलियाँ मरोड़ती हुई बेजान कदमों से दोबारा बेडरूम में चली गई। मिसेज़ जावल इतने दिन से खुद पर ज़बर किए बैठा था, मगर ज़रताश की एक झलक ने इसके गुस्से को झाग की तरह बिठा दिया था। वो बेकरार सा होकर पुष्प पर हाथ बांधे लॉन में इधर से उधर टहलने लगा। दिल कह रहा था कि खफ़ी बुलाकर दिल हमेशा की तरह इसके कदमों में रख दे, मगर दिमाग के तकाज़े कुछ और थे। वो चाहता था इस बार अपनी अना का सर मत कुचलना, ज़रताश को हर हाल में झुकना होगा। वो अजीब सी कशमकश में घिरा झंझला कर गाड़ी की तरफ बढ़ गया।
उरुष आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक को कोट पे कोट लगा के घेरा कर रही थी। मेकअप से इसने लाइट ही किया था मगर लिपस्टिक बहुत डार्क लगाई थी। इसने आईने में एक बार फिर अपना तस्वीरी जायज़ा लिया, सर हिलाते हुए हैंड कैरी की तरफ गई, बेबी को गोद में उठाया, फिर रूम से बाहर निकल आई। पूरे 3 माह बाद मुअज़्ज़म शाह घर वापस आ रहा था, वो भी मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद। वो शाह के लिए बहुत दिल से तैयार हुई थी। खालाजान वो लोग कब पहुँचेंगे? इसने बेबी को रुखसाना की गोद में डालकर बेसब्री से पूछा। बस पहुँचने ही वाले होंगे। मखदूम शाह ने इसी टाइम पहुँचने का कहा था। एयरपोर्ट से तो सुबह ही आ गए थे मगर शाह को शहर में ज़रूरी काम निपटाने थे, इसलिए निकलने में ज़रा देर हो गई। रुखसाना बेगम इसकी बेसब्री पे मुस्कुराईं। ज़ैनब, समीना और रुखसाना भी इनके इंतज़ार में बैठी हुई थी। तुमने अच्छा किया जो तैयार हो गए, अब ज़रा किचन का एक चक्कर लगा लो, देखना सब कुछ ठीक है से हो भी रहा है। मैंने आज सारी डिशेज़ इन दोनों की पसंद की बनवाई हैं। रुखसाना बेगम बहुत खुश थीं। उरुष ने बेबी को प्यार करके वहाँ से उठ गईं। वो मुलाज़िमा के साथ मिलकर किचन में काम करवा रही थी। जब पोर्च में गाड़ियों के रुकने की आवाज़ सुनी, वो बेकरार हो गई मगर बामुश्किल खुद को बाहर जाने से रोका। रुखसाना बेगम ने मुअज़्ज़म शाह का सर अपने सीने से लगाया। इसे ढेरों दुआएँ देने के बाद बच्चे के पास ले आईं। मुअज़्ज़म शाह, तुम नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हें दोबारा अपने पैरों पे चलता हुआ देखकर मेरा कलेजा ठंडा पर हो गया। वो कहते हुए रो पड़ी। आपकी दुआओं से मैं ठीक हो गया हूँ ना, फिर आप क्यों रो रही हैं? शाह ने माँ के शाने पे हाथ हिलाया। अम्मा, ये है ज़ैब शाह, ये कितना छोटा-सा है। मखदूम शाह ने बच्चे को ऐसे छुआ जैसे वो मोम का हो। कमरे में मौजूद सभी अफराद इसकी बिचकाना बात पर बेसाख्ता हँसे। मखदूम शाह ने इसे बेताशा चूमते हुए मुअज़्ज़म शाह की तरफ बढ़ाया। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। शाह ने इसे बखूर देखते हुए मखदूम शाह से कहा। हम सब ने इसे पहली बार देखकर यही कहा था, ये हूबहू मखदूम शाह है। ज़ैनब फूफो बोली। उरुष, नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? शाह की बेताब नज़र कब से इसे ढूंढ रही थी मगर वो थी कहीं छुप कर बैठ गई थी। दरवाजे से लगी उरुष का दिल ज़ोर से धड़का। वो तरस गई थी मखदूम शाह के इस लहजे में, इस आवाज़ के लिए। किचन में खाना बनवा रही, मैं इसे बुलवाती हूँ। रुखसाना बेगम ने फ़ौरन कहा था। अभी उरुष सर पे दुपट्टा जमाती हुई अंदर आकर धीरे से सलाम किया। मुअज़्ज़म शाह की नज़र इससे मिली तो पूरी दुनिया रोशन हो गई, वरना इसके बगैर वीरानी ही वीरानी थी। वो रस्ट कलर कॉटन के एम्ब्रॉयडरी सूट में मलबूस थी, डार्क मेकअप में अप्सरा लग रही थी। शान भुआ इसका इसकी भरपूर तैयारी को नज़रों ही नज़रों में सराया। उरुष ने घबराकर पलकें झुका ली। शाह की गहरी नज़रें इसके सरापे पर जम कर रह गई। उरुष अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए सोफे पे बैठ गई। उरुष, तुम ठीक हो? तुम्हें हमारी आमद की खबर नहीं हुई या जानबूझकर छुपी हुई थी? मुअज़्ज़म शाह ने बराह रास्त से मुखातिब किया। मैं ठीक हूँ, किचन में काम देख रही थी। उरुष गड़बड़ा गई। शाह इसकी घबराहट से महफूज हुआ। अम्मा, खाना तैयार है, लगवा दूँ? उरुष ने बिला वजह अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। मुअज़्ज़म शाह की बोलती आंखों से इसे कन्फ्यूज़ कर रही थी। हाँ, लगाओ ना, बच्चे सफ़र से आए हैं, थके हुए हैं, भूख लग रही होगी। रुखसाना बेगम ने इसकी मुश्किल आसान की। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। फिर शाह नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ झुककर सरगोशी में इसे जल्दी बेडरूम में पहुंचने की तंबिया करता हुआ उठ गया। एक-एक करके सभी उठ गए। उरुष भी बच्चे को संभालती हुई खड़ी हो गई। भाभी, आप इसे मुझे दे दें, अभी तो मैंने इससे बहुत सारी बातें करनी है और आप इसे ले जा रही हैं। मखदूम शाह ने ज़ैन को गोद में लिया। आपकी बातें अभी इसे समझ नहीं आएगी और जब ये बोलने लगेगा तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। उरुष खिलखिलाई। इसका इशारा बेबी के चीख-चीख कर रोने की तरफ था। अरे, आप बेफ़िक्र हो जाएँ, हमें सँभालना आता है। इसके बाप को राह रास्त पर ले आए तो ये क्या चीज़ है? इसने उरुष को छेड़ा। उरुष की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उरुष ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। शाह बेड पर नींदराज़ था। वो दरवाज़ा बंद करते ही अंदर आ गई। शाह फ़ौरन बेड से उठा और आगे बढ़कर इसे खींचकर गले लगाया। माय डिम्पल गर्ल, कैसे मैं इतने अरसे तुमसे दूर रहा, अब सोच रहा हूँ तुम तो वहशत हो रही है। शाह इसे गले से लगाए खड़ा था। आपके जाने से मैं बहुत उदास हो गई थी, उरुष ने धीरे से कहा। इसी मासूमी में तो मैं जो कुर्बान हूँ, अगर ऐसे कहोगी तो मैं मजबूरी में भी कभी कहीं नहीं जा सकूँगा। शाह इसके अंदाज़ पे फ़िदा हो गया। अल्लाह ना करे आप कोई मजबूरी आपको मुझसे दूर करे। उरुष ने सर उठाकर इसे देखा। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। शाह के लहजे में शरारती बजाय संजीदगी से बोला। क्यों? उरुष लर्ज़ा के रह गई। तुमने मुझे बेटी नहीं दी, मुझे कितना अरमान था बिल्कुल तुम्हारी जैसी बेटी हो। शाह ने इसकी नाक को छुआ। मेरे बस में होता तो मैं आपको आपकी ख्वाहिश पूरी कर देती मगर ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। उरुष ने आहिस्तगी से जवाब दिया। कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई कर लेते हैं। मुझे यकीन है इस बार बेटी ज़रूर होगी। शाह शरारत से उसके चेहरे पे झुका। खुदा को माने, अभी तो ज़ैम इतना छोटा-सा है, मुझे तो सोचकर भी घबराहट हो रही है। उरुष ने दोनों हाथों से इसे धक्का दिया। जब तक मेरी बेटी आएगी, ज़ैम भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, मैं दोनों को सँभाल लूँगा। वो मखूर लहजे में बोला। आप तो घर से बाहर चले जाएँ, फिर पैरों मुड़कर भी नहीं देखते। मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। अब सुधर गया हूँ ना, अब ऐसा नहीं करूँगा। शाह ने इसे खुद से करीब किया। मेरे शहज़ादे को कहाँ छोड़ आई हो? शाह को ज़ैम का ख़्याल आया। वो मखदूम भाई के पास है, उन्होंने लाने ही नहीं दिया। मेरा भाई बहुत समझदार है, हमें प्राइवेसी देना चाहता है।
آج ویسے بھی ہمیں پرائیویسی کی سخت ضرورت ہے، شاہ بھاری آواز میں بولا۔ زرتاج حویلی کے دلان میں کھڑی تھی، سرد ہوا کا تیز جھونکا اسے ٹکرایا تو پورے بدن پہ کپکپی طاری ہو گئی۔ اس نے شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپٹا اور خارجی دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ لان کی طرف نکل آئی تھی، حفاظت پہ مامور گارڈ باتوں میں مصروف تھے۔ وہ دور کھڑی ہو گئی، ساجد کی نظر اس پہ پڑی تو دوڑتا ہوا آیا۔ زرتاج بی بی، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ چھوٹے میرزائی کو پتہ چلا تو بہت غصہ کریں گے۔ ساجد خوف زدہ ہو گیا۔ مجھے کچھ کام تھا، زرتاج ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ تو آپ انٹر کام کر دیتی، میں اندر آ جاتا۔ خیر بتائیے کیا کام ہے؟ ساجد ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میرزائی کہاں ہیں؟ وہ تو جی وہ فارم ہاؤس پر ہیں۔ ساجد جھجکتے ہوئے بولا، وہاں کیا کر رہے؟ شام کو تو یہیں تھے۔ زرتاج نے حیرت سے استفسار کیا۔ دن میں تو آتے ہیں، آج بھی شام تک مردانے میں مہمانوں کے ساتھ تھے، مگر رات کو فارم ہاؤس چلے جاتے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے وہ زیادہ پیتے ہیں، مگر آج کل تو حد ہو گئی ہے، دن رات نشے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ساجد نے تفصیل بیان کی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے فارم ہاؤس لے چلو، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مگر اب تو بہت رات ہو گئی، 3 بجے سے اوپر کا ٹائم ہے، آپ صبح مل لیجیے گا۔ وہ دن میں آئیں گے تو میں آپ کو فوراً اطلاع کر دوں گا۔ ساجد گھبرا گیا۔ مجھے ابھی جانا ہے، تم مشورے مت دو، بس لے چلو۔ زرتاج نے لہجے کو سخت بنایا۔ جی بہتر، وہی کہہ کر پورٹ سے گاڑی نکالنے چلا گیا۔ زرتاج گاڑی میں سوار مسلسل میر سجاول کے بارے میں سوچی تھی، جو اپنی تمام تر زیادتیوں کے باوجود اس کے دل میں بہت اونچے مقام پر فائز ہو چکا تھا۔ زندگی کے لیے اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ اس کے 3 دن کی تعلقی نے زرتاج کو تپتے صحرا میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ میر سجاول کی ولہانہ محبت، اس کے عشق کے برملا اظہار کی عادی ہو چکی تھی، اس کے بنا جینے کا تصور بھی محال تھا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے وسیع و عریض احاطے میں رکی۔ وہ چادر سے خود کو ڈھانپ کر باہر نکلی اور اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے میر سجاول کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ اندر قدم رکھتے ناگوار بدبو کے پھبکے سے چکرا گیا۔ پورے کمرے میں اس قدر ناگوار بدبو پھیلی ہوئی تھی کہ زرتاج کو اکائی آنے لگی۔ میر سجاول شرٹ سے بے نیاز آنکھوں پہ بازو رکھے بیڈ پہ بے سود سو رہا تھا۔ 2 بوتلیں سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک خالی تھی، ایک میں مشروب کی تھوڑی مقدار موجود تھی، باقی بوتلوں کا ڈھیر ٹیبل پر تھا، جس سے اندازہ ہوتا کہ یار دوست بھی ساتھ ہی شغل فرما رہے تھے۔ خاصی ٹھنڈ کے باوجود اے سی بھی چل رہا تھا، کمرہ یک ٹھنڈا ہو رہا تھا، مگر میر سجاول ٹھنڈ سے بے نیاز پڑا تھا۔ کمفرٹ آدھا بیڈ پہ آدھا زمین پہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ چلتے ہوئے بیڈ تک آیا اور میر سجاول کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ میر اس سے مس نہ ہوا۔ میر صاحب اٹھ جائیں، گھر چلیں، وہ اس بارے سے جھنجھوڑ کر بولی۔ میر نے ذرا سا بازو ہٹا کر بامشکل آنکھیں کھول کر اسے چلنا میں دیکھنے کے بعد دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ نشے میں دھت اسے زرتاج بھی دھندلائی ہوئی نظر آئی۔ میر صاحب پلیز اٹھ جائیں، کیوں مجھے ستا رہے ہیں؟ زرتاج نے پھر اس کا بازو زور سے ہلایا۔ وہ رو دھونے کو تھی۔ میر سجاول نے اس کی کلائی پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور اپنے پہلو میں گرا لیا۔ وہ جاگ چکا تھا۔ آ گئی تم؟ میر سجاول کا عشق اتنا بھی کمزور نہیں، آخر تمہیں کھینچ ہی لایا، وہ خمار لہجے میں بولا۔ آپ اتنے دنوں سے گھر نہیں آ رہے، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا، وہ روحان سی ہو کے بولی۔ کیوں آؤں میں گھر؟ کیوں ہاتھ لگا رہی ہوں مجھے؟ تمہیں تو نفرت ہے نا مجھ سے، میرے وجود سے گھن آتی ہے، پھر میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میر سجاول اس پر جھکا، اس کی گردن دبوچ کر غرایا۔ سوری، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بامشکل بولی۔ میر کے ہاتھ کا دباؤ سخت تھا۔ اب معاف نہیں کروں گا، تم نے مجھے بہت ستایا، ہر وقت لڑتی رہتی ہو، میرا قصور بھی نہیں بتاتی۔ اس نے زرتاج کا ہاتھ چوم کر شکوہ کیا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا پوری زندگی میرے نخرے اٹھائیں گے، آپ تو اتنے ہی میں روٹھ کر بیٹھ گئے۔ زرتاج منہ بسور کر بولی۔ میر کا کہہ برجستہ تھا۔ اچھا تو یہ پلان نہ نخرے اٹھوانے تھے تو بول دیتی، میں جی جان سے جی حضوری کرتا، مگر غصہ تو نہ کرتی، اتنا معصوم سا ہوں یا ڈر جاتا ہوں؟ وہ شرارت سے بولا۔ اتنے بھی معصوم نہیں، بہت ظالم ہے، اتنے دن سے مجھے کتنی بے دردی سے اگنور کر رہے ہیں، اپنی بہن سے تو بڑی محبت جھاڑ رہے تھے، میں نظر نہیں آئی؟ میں ہوں کون آپ کی جو میرا خیال آئے گا؟ زرتاج دل کی بات زبان پر لے آئی۔ تم تو میری جان ہو، میری دلبر ہو، ہر طرف بس تم ہی تم ہو، مگر تمہاری بے رخی جگر چلنی کر دیتی ہے۔ میر سجاول کو اس پر ٹوٹ کا پیار آیا، وہ بے اختیار زرتاج پر جھکا۔ اچھا اب اٹھ جائیں، گھر چلیں۔ زرتاج نے اٹھانے کی کوشش کی۔ اب ہنی مون سیزن 2 بنا کر صبح چلیں گے، میر سجاول نے شوخی سے کہا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگایا اور گلاس بھرنے لگا۔ اب کیا ضرورت ہے پینے کی، اتنی پی ہے، کافی نہیں ہے؟ زرتاج نے ناگواری سے کہہ کر اس کا ہاتھ روکا۔ دلبر صاحب بس تھوڑی سی اور۔ میر نے التجا کی۔ ہرگز نہیں، اب آپ بالکل نہیں پئیں گے، بلکہ کبھی بھی نہیں پئیں گے، پابندی لگا رہی ہو؟ میر کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ جی بالکل۔ اچھا تو پھر فلم ایکٹریس اور ناولس کی ہیروئن کی طرح میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر قسم اٹھاؤ نا۔ وہ بالکل بھی سیریس نہیں تھا، وہ شرارت سے بولا۔ زرتاج دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ہنس پڑی۔ قسم نہیں لینی؟ میر سجاول نے اس کی کلائیں پکڑ کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ نہیں، آپ کا عشق کمزور نہیں ہے تو پھر میری محبت بھی بہت بااختیار ہے، مجھے آپ سے اپنی بات منوانے کے لیے کسی قسم کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، زرتاج پراعتماد لہجے میں بولی۔